ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک بات کہ دوستوں کے سوالات کے جواب کے لیے ہم نے ایشا پوڈ کاسٹ کے نام سے ایک چینل بنایا ہے۔ اس کو ضرور وزٹ کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ لنک پہلے کمنٹ اور ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ آڈیو بکس کے لیے چینل ہم نے الگ کر دیا ہے جس کا نام ایشا بکس ہے، اور مثنوی کے لیے ہم نے الگ چینل مختص کیا ہے جس کا نام ہے مسٹک رومی۔ ان چینلز کے لنک بھی ویڈیو کی ڈسکرپشن اور پہلے کمنٹ میں موجود ہیں، ضرور وزٹ اور سبسکرائب کریں۔ آئیے اب چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ اپنی کامیابی اور ناکامی کو جاننے سے پہلے اس کو جانو جس کی یہ کامیابی ہے، جس کی یہ ناکامی ہے۔ پہلے خود کو جانو، خود اپنی نیچر کے بارے میں پہلے جانو۔ جیت اور ہار، ناکامی اور کامیابی کا زوال تو اس وقت اٹھاؤ کہ جب تم کو یہ معلوم ہو کہ تم کیا ہو۔ کیا تمہیں اپنی بینگ کا، اپنے ہونے کا احساس ہے؟ کیا تم یہ جانتے ہو کہ تم پیس آف لائف ہو، زندگی کا معجزہ ہو؟ تم ہار یا جیت نہیں ہو، تم فتح یا شکست نہیں ہو، تم زندگی ہو۔ کیا اس سینسیشن سے آگاہ ہو جسے لائف سینسیشن کہتے ہیں؟ ایک ہے تمہارا ہونا اور ایک ہے تمہارا سوچنا کہ تم ہو۔ اس میں فرق جانتے ہو؟ تمہارا ہونا اور یہ خیال کہ تم ہو، یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ تمہارا ہونا کل ہونے کا ریفلیکشن ہے، عکس ہے، جبکہ تمہارا سوچنا کہ تم ہو تمہارے دماغ کا، تمہارے تھاٹس کا، تمہاری سوچوں کا ایک چھوٹا سا ایکٹ ہے۔ اگر تم زندگی کے احساس کی ترنگیں محسوس نہیں کر سکتے، اگر بینگ کا احساس صرف دماغ، سوچوں سے ماخوذ ہے، تو پوری دنیا بھی تمہیں فاتح، کامیاب اور سکھی مان لے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ تم خود کو ہارے ہوئے، ناکام اور دکھی ہی مانتے رہو گے۔ تمہارے اندر ایک گھاؤ ہے جسے صرف تم بھر سکتے ہو۔ دنیا کی تمام چیزیں، ساری کامیابیاں مل بھی جائیں تو اس گھاؤ کو نہیں بھر سکتی، کیونکہ یہ گھاؤ باہر سے بھرا نہیں جا سکتا۔ کوئی بھکاری ہو اور کوئی حادثہ اسے تخت پر لے جائے تو بادشاہ بن کر بھی اس کا ڈر نہیں جائے گا، احساس کمتری نہیں مٹے گا، کیونکہ احساس کمتری کا تعلق کسی عہدے، رتبے، مال و دولت کے ہونے یا نہ ہونے سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق ہے باطن میں، نفسیاتی ڈھانچے میں موجود خلا سے۔ یہ خلا کائنات کی کوئی بھی چیز باہر سے آ کر نہیں بھر سکتی۔ پورے تو آپ خود میں ہی ہو سکتے ہیں، بھر تو تم خود کو خود ہی سکتے ہو۔ ہو سکتا ہے بادشاہ بن کر تم اس خلا پر پردہ ڈالنے کی کامیاب اداکاری کر لو، مگر تمہارے باطن کے سامنے تو تمہارا خلا ہمیشہ سوالیہ نشان کی طرح، کسی عفریت کی طرح موجود رہے گا۔ میں تمہیں ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں۔ کوئی شخص غریب ہو اور وہ دولت پانا چاہتا ہو تو اس کی منزل بہت چھوٹی سی ہوتی ہے، مقابلہ بھی وہ اپنے سے تھوڑے سے ہی خوشحال لوگوں سے کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب یہی شخص کافی ساری دولت کما لے تو اس وقت ایک عجیب ہی بات ہوتی ہے۔ اس وقت ہی اسے پتہ لگتا ہے کہ وہ کتنا غریب ہے، کیونکہ اب وہ اپنی دولت کا مقابلہ ہمسائے میں موجود کسی خان، گجر، بٹ سے نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ ملک ریاض، میاں منشا اور بل گیٹ سے کر رہا ہوتا ہے۔ اس وقت اسے لگتا ہے کہ وہ ان کے مقابلے میں کتنا غریب ہے۔ یہی معاملہ ملکوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ پاکستان اور بھارت کی مثال کو دیکھ لو۔ جب دونوں کے پاس انگریز کی چھوڑی چند بندوقیں تھیں تو اس وقت ایک دوسرے کا خوف کہیں کم تھا، مگر اب میزائلوں کے انبار ہیں، ایٹم بموں کی لائنیں ہیں، مگر عدم تحفظ کا خلا ہے کہ بھرنے میں نہیں آ رہا۔ اپنے لوگوں کا پیٹ کاٹ کاٹ کر بم اور میزائل بنانے کی دوڑ میں دونوں ملک لگے ہوئے ہیں، اور معاملہ صرف ہندوستان یا پاکستان کا نہیں، عدم تحفظ کا شکار ہر ملک یہی کر رہا ہے۔ یقین مانو ایسے ملکوں کو عدم تحفظ کا احساس جتنا اب ہے اس وقت نہیں تھا جب ان کا سیکیورٹی اپریٹس بہت محدود تھا۔
हिफाजत की तलाश में मुल्क हो या फ़र्द, उसे अपने अदम तहफ़्फ़ुज़, अपनी कमज़ोरी का एहसास उसी वक्त ज़्यादा होता है जब वो बहुत सा असलहा जमा कर चुकता है, क्योंकि दौलत, हिफाजत और शोहरत का जो सफ़र बहुत गुर्बत, बेअसले और बेनामी से शुरू हुआ था, अब वो इफरीत बन गया है। अब वो मुकाबले के बड़े मैदान को देख रहा है। अब कंट्रास्ट सामने है, जैसे काली दीवार पर सफ़ेद लकीर थोड़ी सी भी हो तो नुमायां हो जाती है। इसलिए बहुत पैसा कमा लेने वाले को ही अपनी गुर्बत का हकीकी एहसास होता है। बहुत असला जमा कर लेने वाले को ही अपने अदम तहफ़्फ़ुज़ का ज़्यादा एहसास होता है। तुम लोगों ने एक ऐसी दौड़ दौड़ने की ठान ली है जिसमें जीत हो ही नहीं सकती, लेकिन इस चक्कर में तुम नौ इंसानी को ही नहीं, तमाम अनवा को ख़तरे में डाल के बैठे हो। तुम्हारी लालच, तुम्हारी ताकत और शोहरत की दौड़ ने समंदरों की मछलियों तक को जहरीला कर दिया है, हवाओं को ग्रीन हाउस गैसों से आलूदा कर दिया है, इंसानी हयात की हुर्मत को दाव पर लगा दिया है, बल्कि खुद उस ज़मीन को ख़तरे में घेर दिया है जो तुम्हारा घर है। तुम्हारा तर्ज अमल ये है कि दूसरी अनवा और दूसरे लोगों को मिटाओ, उनका खात्मा करो, ताकि तुम ताकतवर कहलाओ, फातेह नाम मिले, लोग कामयाब कहें। इंसान के बातिन की यही वो फाश गलती है जिसने इंसान को कायनात की ख़तरनाक तरीन नौ बना दिया है। फ़कीर कहता है, हिफाजत चाहिए तो झुकना है तहफ़्फ़ुज़, ख़तरे से आज़ादी चाहिए तो मिटना है आज़ादी। कभी तुमने देखा है ज़ोरदार तूफ़ान आता है, बड़े दरख्त गिर जाते हैं मगर छोटे दरख्त और घास फूस बच जाता है। बड़े दरख्तों की जड़ें तक हिल जाती हैं मगर घास फूस की धूल मिट्टी तक उड़ जाती है और जड़ें भी मज़ीद मजबूत हो जाती हैं। वो दरख्त जो सीना तान कर तूफ़ान के सामने खड़े हो जाते हैं, लड़ते हैं, तूफ़ान को हराने की कोशिश करते हैं, वो गिर जाते हैं। और घास फूस और छोटे दरख्त जो बिछ जाते हैं, सरेंडर कर देते हैं, झुक जाते हैं, मिट जाते हैं, तूफ़ान के हमराही हो जाते हैं, वो बच जाते हैं। ज़िंदगी का भेद जानना चाहते हो, हयात का राज समझना चाहते हो, तो इन छोटे दरख्तों और घास फूस से पूछो। बड़े तनावर अकड़े दरख्तों के पास न जाओ, इन छोटे दरख्तों और घास फूस को बड़े से बड़ी आंधी उखाड़ नहीं पाती। आखिर क्या है इनका राज? इतने कमज़ोर, इतने नाजुक कि बिल्ली का पाँव ऊपर पड़ जाए तो टूट जाते हैं, मगर यही कमज़ोर घास फूस ऐसे तूफ़ानों की लपेट में आए और इनकी जड़ें भी न हिली, ज़रा सी इनकी जड़ होती है, जबकि दूसरी तरफ बड़े बड़े दरख्त की ज़मीन में कितनी गहरी जड़ें होती हैं, मगर तूफ़ानों में यकलख्त यूं गिरते हैं कि जड़ें तक बाहर आ जाती हैं। इन बड़े दरख्तों से आखिर क्या भूल हुई? इनसे एक ही भूल हुई, इन बड़े दरख्तों ने लड़ना चाहा, इन बड़े दरख्तों ने जीतना चाहा, इन बड़े दरख्तों ने तूफ़ान से जंग करने की ठान ली, जबकि छोटे मोटे दरख्त और घास के तिनके झुक गए, तस्लीम और रज़ा पर आ गए। उन्होंने कोई झगड़ा ना किया, कोई मज़ाहमत ना की, सरेंडर ही कर दिया। उन्होंने तूफ़ान को दुश्मन ही नहीं माना तो लड़ने का सवाल ही कहाँ उठता है। उन्होंने तूफ़ान की शिद्दत को भी प्यार से गले से लगा लिया। उन्होंने खेल समझा, जंग न समझी। जिस दिन तुम समझ गए कि ज़िंदगी जंग नहीं खेल है, तुम्हारे सारे सवाल खुद मर जाएंगे। तुमने ज़िंदगी को जंग बना लिया। अब हर काम में मकसद ढूंढते हो, हर काम को स्टेप समझते हो। आगे बढ़ने का एक स्टेप, जीत की तरफ एक और कदम, कामयाबी की तरफ एक और कदम। सोचो, तुम ज़्यादा खुश हो या बच्चे ज़्यादा खुश होते हैं? बच्चे ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि वो ज़िंदगी को खेल समझते हैं। सारा दिन खेलते हैं मगर इस खेल का कोई मकसद नहीं होता। ये बड़े वालिदैन उन्हें समझाते समझाते थक जाते हैं। क्यों वक्त ज़ाय कर रहे हो? कुछ कर लो, कुछ पढ़ लो, कुछ बन जाओ।
भाई वो कर रहे हैं, वो जिंदगी की किताब को पढ़ रहे हैं, वो बने हुए हैं, वो अपने आप में बने हुए हैं। उन्हें उन बनने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो हैं और होने के खेल का क्या मकसद। बच्चों को जब वालिदैन कहते हैं कि खेलो मत, क्यों वक्त ज़ाया कर रहे हो, तो उन्हें वालिदैन की लॉजिक समझ ही नहीं आती, क्योंकि वो फितरी तौर पर नेचर के पढ़े लिखे होते हैं। वो जानते हैं कि होना काफ़ी है, होने के लिए कुछ खास करना, कहीं जाना, आगे बढ़ना ज़रूरी नहीं है। इसीलिए सियाने कहते हैं कि ज़िंदगी सीखनी हो तो बच्चों से सीखो, बड़ों के पास मत जाओ ज़िंदगी सीखने। हाँ, डॉक्टरी, वकालत, प्लम्बरी सीखने चले जाओ बड़ों के पास। इखलाक, इलाहियात चाहे सीखने चले जाओ मौलवी, पंडित, पादरी के पास। मगर ज़िंदगी सीखने जाना हो तो बच्चों के पास जाना, या उनके पास जो बड़े तो हैं मगर बच्चों जैसे हैं। तो बात यह है कि घास के तिनके आंधी के आने को हमला, चैलेंज नहीं समझते, वो उसे रास्ता दे देते हैं, वो उससे कोऑपरेट कर जाते हैं। वो तूफान से कहते हैं ठीक है बह जाओ, ये लो रास्ता, तुम और से देखो। छोटे दरख्त तुम्हें ज़्यादा ताकतवर लगेंगे, बड़े दरख्त अंदर से कमज़ोर थे, उन्हें आंधी खतरा लगी। खतरा कमज़ोर को ज़्यादा नज़र आता है, उन्हें आंधी चैलेंज लगी। कमज़ोर को हर वक्त ही डर होता है कि कोई उसे निगल न ले, खा न जाए, ताकत न छीन ले, शोहरत न छीन ले, हमला न कर दे। जाकर देखो अक़वाम मुत्तहिदा की बहसें, हमसाया मुल्क और दुश्मन मुल्कों की हर हरकत को अपनी सिक्योरिटी के लिए मुल्क ख़तरा समझकर चीख रहे होते हैं। तो जब आंधी आती है तो बज़ाहिर ताकतवर, तनावर और मजबूत दरख्त डर जाते हैं। बड़े दरख्त अंदर से कमज़ोर होंगे, इसलिए वो डर गए। उन्होंने रास्ता न दिया, तूफ़ान को कबूल न किया। उनकी अना को लगा ये इज़्ज़त का सवाल है, हम इतने ऊंचे बड़े तनावर दरख्त और एक तूफ़ान से हार मान लें। हाँ, उनकी इज़्ज़त बड़ी कमज़ोर रही होगी। उन्होंने ये सोचा कि तूफ़ान हमें उखाड़ने आया है। देखा नहीं, अमेरिका ने एक उसामा को, एक सद्दाम को भी अपनी ताकत के लिए कितना बड़ा ख़तरा मान लिया कि लाखों जिंदगियां लुक़्मे अजल बन गईं। इस बात को समझो, कोई तूफ़ान किसी को उखाड़ने नहीं आता, वो अपनी फितरत पर होता है, वो अपने होने के फ़र्ज़ को निभा रहा होता है, वो किसी को उखाड़ने पछाड़ने नहीं आता। आंधी को बड़े दरख्त से क्या दुश्मनी होगी और घास के तिनकों से क्या प्यार होगा। आंधी तो अपनी ही फितरत का इजहार करती है, उसे क्या लेना उन दरख्तों से। ये उसका रवैया है, ये उसके होने का तर्ज है, बहना उसका तर्ज हयात है। वो किसी को तोड़ने, अखाड़ने, पछाड़ने के लिए नहीं बहती। लेकिन बड़े दरख्तों के दिल में ज़रूर कोई डर रहा होगा, उनकी इज्जत का सवाल होगा। लोग हंसी उड़ाएंगे, क्या कहेंगे, एक तूफ़ान से, मामूली सी आंधी से हम हार गए। उन्होंने तूफ़ान के फितरी इजहार को अपने लिए चैलेंज समझा और बिला वजह ही चैलेंज समझा। तूफ़ान किसी के लिए कोई चैलेंज नहीं था, बस वो था। ये दरख्त दुनिया में ना होते तो भी तूफ़ान ऐसे ही बहता। उसे इन दरख्तों से क्या लेना देना था। जब ये दरख्त नहीं थे तब भी तूफ़ान बहते थे, आंधियाँ चलती थीं, लेकिन दरख्त की अपनी अनाड़े आ गई। दरख्त ने जाना, मैं जो इतना ताकतवर हूँ, तनावर हूँ, ये आंधी मेरे लिए चैलेंज है, लड़ूंगा, जीत कर दिखाऊंगा। आंधी टूट कर रहेगी, मगर याद रखो कभी कोई आंधी नहीं टूटती, हमेशा दरख्त ही टूटता है। ज़िंदगी नहीं बिखरती, हमेशा अना ही बिखरती है। तस्लीम और रज़ा नहीं मिटता, अना और गरूर ही मिट कर रहता है। इसलिए बड़े दरख्त टकराते हैं, और जब टकराते हैं तो जड़ें तक हिल जाती हैं। याद रखो, जड़ें आंधी से नहीं हिलती, जड़ें तूफ़ान से नहीं हिलती, जड़ें टकराने से हिलती हैं। दरख्तों की रेजिस्टेंस, उनकी अपनी मज़ाहमत, उनकी खुदकुशी बन जाती है। सोचो, जो आंधी छोटे छोटे से दरख्तों और घास के
तिनकों तक को नहीं मिटा सकती, वो बड़े बड़े तनावर दरख्तों को कैसे गिरा पाती। दरख्त, बड़ा दरख्त गिरता है रेजिस्टेंस की वजह से, मज़ाहमत की वजह से, मुकाबले की वजह से, कोशिश और जद्दोजहद की वजह से, लड़ने की चाह की वजह से। फतह की लालच उसे गिराती है, जीतने की तमन्ना उसे मिटाती है, कामयाबी का ख्याल उसे ज़िवाल के पाताल में ले जाता है। ये जो तुम कहते हो तुम नाकाम हो, तुम्हें कामयाबी चाहिए, तुम ज़िवाल में हो उरूज चाहिए, तुम हारे हुए हो जीत चाहिए, ये चाहत है तुम्हारा दुख, ये ख्वाहिश है तुम्हारा ज़िवाल। यही दिमाग के अंधेरे कमरे में बुनी गई साजिशें ही तुम्हारा बीपी, शुगर, हार्ट अटैक और कैंसर हैं। तुमने ज़िंदगी को जंग समझ लिया है और ख़ुद ज़रा बख्तर सिपाही बने फिर रहे हो। हर वक्त ख़तरे की बू सूंघते फिरते हो कि कहीं कोई घात लगा कर तो नहीं बैठा, कहीं कोई हमला आवर तो नहीं छुपा बैठा। तुम सोचते हो तुम लोगों से लड़ रहे हो, तुम सिचुएशन से लड़ रहे हो, नहीं तुम ज़िंदगी से लड़ रहे हो, किसी और के होने से लड़ रहे हो। अपने होने से ज़्यादा तुम्हें दूसरे के होने का एहसास है, इसलिए तुम्हारी ज़िंदगी की लगामें दूसरे के हाथ में चली गई हैं। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जो लड़ के गिरता है वो दोबारा उठने की सलाहियत खो देता है, क्योंकि जो लड़ के गिरता है उसकी वो जड़ें ही टूट जाती हैं जो उसे फिर से उठा सकती थी। यही आंधियां छोटे पौधों को भी झुकाती हैं, सर निगों करती हैं, ज़मीन से मिला देती हैं, मगर वो लड़ के नहीं झुकते, जीत की कोशिश में नहीं ज़मीन को गले से लगाते, बल्कि तूफान को रास्ता देने के लिए झुकते हैं, आजिज़ी से झुकते हैं, सरेंडर में झुकते हैं, इसलिए दोबारा उठाते हैं, क्योंकि उनकी जड़ें नहीं टूटती। और जब तूफ़ान आंधी गुजर जाता है तो वही ज़मीन से लगे छोटे पौधे फिर खड़े मुस्कुरा रहे होते हैं, झूल रहे होते हैं, वैसे के वैसे ज़िंदा, बल्कि पहले से भी ज़्यादा तरोताज़ा, ज़्यादा खुश। ये आंधी के सामने सरापा तस्लीम हो जाना उन्हें और भी ज़िंदा कर जाता है। ये आंधी जाते हुए उनकी धूल मिट्टी भी उड़ा ले जाती है और फ्रेश कर जाती है। ये आंधी तो गोया उनके लिए गुस्ले सीहत बन जाती है। वो आंधी जो बड़े दरख्तों की दुश्मन साबित हुई थी, उनके लिए दोस्त बन जाती है। ये तूफ़ान उन्हें ज़िंदगी के कुछ और रंगों से आशना कर जाता है, ज़िंदगी के मानी बता जाता है। क्यों? क्योंकि तूफ़ान उनके लिए चैलेंज नहीं था, मुकाबला नहीं था, बल्कि ज़िंदगी का बस एक मोड़ था। और अब आंधी जा चुकी है और छोटे पौधे अपनी जगह पर खड़े हैं, और भी ज़्यादा शिद्दत के साथ, ताकत के साथ खड़े हैं, ज़िंदगी के मज़ीद तजर्बों से भर के खड़े हैं। उनकी जड़ें तूफ़ान और मजबूत कर गया, क्योंकि ज़िंदगी का हर नया तजर्बा जड़ों को मजबूत कर जाता है। ये छोटे दरख्त आंधियों के बल पर और ज़्यादा तवाना हो गए और ज़्यादा मुसर्रत से भर गए। तूफ़ान इनका कुछ बिगाड़ता नहीं और बना जाता है। इसलिए फ़कीर कहता है, तहफ़्फ़ुज़ चाहते हो तो झुकना सीखो, जीत चाहते हो तो मानना सीखो, कामयाबी चाहते हो तो तस्लीम और रज़ा को गले से लगा लो।